جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر اعزاز احمد چودھری صاحب۔ امبیسڈر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کو بہت شکریہ سر۔ جی بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می جی۔ میں بتاتا چلوں کہ امبیسڈر صاحب نے تقریباً 37 ایئرس پاکستان کی جو فورن سروس میں سرو کیا ہے، اور ایز اے فورن سیکرٹری وہ پاکستان کے تقریباً 3 سال رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں انہوں نے سرو کیا ہے۔ امریکہ میں، یو این میں بھی رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ، کائرو میں، دوحہ میں، واشنگٹن ایمبیسی جو ہیں وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب امبیسڈر صاحب جو ہیں وہ ٹفٹس یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پڑھے ہوئے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ امبیسڈر صاحب، آج آپ سے لمبی باتیں کرنی ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ کی جو بک ہے جو آپ نے لیٹسٹ لکھی، ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس، اس میں آپ نے بات کی کہ جی ہمارے جو فورن پالیسی ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں بات کی، اور آپ نے بات کی کہ جو فورن سروس ہے وہ کس حد تک اب سیاست دانوں کو پاکستان میں اسسٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے ریگارڈنگ دا فورن پالیسی۔ تو میں پہلا سوال سر آپ سے یہی کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بک میں بھی کیا ہے، کہ آپ نے کیونکہ 37 آلموسٹ یو گیو یور انٹائر لائف ٹو پاکستان اینڈ ٹو دی پاکستان فورن سروس، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اور آپ ہائیسٹ پوزیشن تک پہنچے ہیں، پاکستان کا فورن آفس جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کو جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے، اور پولیٹیکل کلاس اسے کس طرح ریسیو کرتی ہے سر؟ جی بہت شکریہ چیمے صاحب۔ پہلے تو میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں کہ اپنی جو آپ کی درس و تدریس کا سلسلہ ہے اس کے علاوہ بھی آپ ماشاءاللہ اپنی آواز کو مختلف ذرائع سے پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مکالمہ جو ہے اس میں اور مشاورت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اسی لیے علم آپ کے تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ جو آپ نے سیکھا، آپ کے تجربات ہیں، وہ پھیلنے چاہیے، آگے تک پہنچنی چاہیے، اور یہی میرا زیادہ محرک تھا کتاب لکھنے کا، کہ ہمارے سول سرونٹس ہیں، ہمارے ڈپلومیٹس ہیں، اور بھی پیشوں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کا قرض ہے اگلی نسل پر، کہ وہ جب اپنا انہوں نے جو سیکھا، جو دیکھا، اس کو بیان کریں، پوری ایمانداری سے کریں، جتنی حد تک کر سکتے ہیں کریں، تاکہ آنے والی نسل جو ہے آپ کی وہ اس سے بہرہ مند ہو سکے اور وہ سیکھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو بہت ہی لکھنے پڑھنے کا کام کم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کے بعد تو اور بھی کم ہو گیا، لیکن دنیا کی جن قوموں نے ترقی کی ہے ان میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ کیا ہماری قیادت دفتر خارجہ کے مشوروں سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں جی اٹھاتی ہے۔ کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اپنی خارجہ پالیسی کو چلانے میں بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، اور کہ بڑے شعبوں میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اچھا، کامیابی وہاں ہوئی ہے جہاں پاکستان کی قیادت نے پاکستان کے تمام تھاٹ لیڈرز کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا، اور بڑی ہی یعنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سب کو سامنے، جس طرح پارلیمنٹ ہے یا کسی ایسے فورم پر مل کر انہوں نے جب بھی فارن پالیسی کے ڈیسیژنز لیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ لیکن جہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ چھپ چھپا کے کام کیے گئے، دو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں، اس کے بعد میں خاموش ہوتا ہوں تاکہ آپ اگلا سوال کر سکیں۔ پہلا تو یہ کہ جب یمن میں سعودی عرب نے حملہ کیا تھا 2015 میں، تو معاملہ ہماری پارلیمنٹ تک چلا، تھوڑی خفگی ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اس کی سب نے عزت کی اس فیصلے کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کی عوام میں سے وہ فیصلہ نکلا تھا۔ دوسرا تھا کہ جب 9/11 کے بعد جنرل مشرف نے کیا جو ان کے ساتھ، تو وہ تقریباً خفیہ تھا، اور اس کا نہیں پتا تھا، اس کے پھر نتائج بھی آپ نے دیکھے۔ اس لیے میں نے یہ دونوں مثالیں دیکھی، اور دفتر خارجہ باقاعدہ اپنی رائے دیتا ہے، ایماندارانہ رائے دیتا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ اس کا کام ہے، یہ اس کو فیصلہ قیادت نے کرنا ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، فیصلہ قیادت کا کام ہے، لیکن دفتر خارجہ کو چاہیے کہ وہ اس روش کو قائم رکھے اور اپنی ایمانداری سے اپنا جو وہ سمجھتے ہیں مشورہ دیں۔ میری کتاب میں بہت جگہوں پر یہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی جناب۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، ظاہری بات ہے یہ تو پھر وہ ظاہری بات ہے قیادت کے اوپر۔ سر آپ نے سعودی عرب کی بات کی، میں کیونکہ آپ فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں تو آپ تو پورے فورن آفس کو دیکھ رہے تھے سر، اور ساتھ میں تھوڑا اس کو بھی لیتا چلوں، یہ کچھ عرصے سے ایسے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جہاں پہ جا رہے ہیں، ریسنٹلی یو اے ای میں گئے،
पाकिस्तान ने कश्मीर का तस्करा करना कम कर दिया है या बंद हो गया ऑलमोस्ट। यूएन के प्लेटफॉर्म पे तो पाकिस्तान बड़ा बबांगे दोहल बोलता है। अभी जैसे यूएई गए थे, सऊदी अरब गए हुए थे, एमबीएस से मिले, तो उस तरह वो तस्करा नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि वो जो खित्ते का जो रीजनल कैलकुलस था, उसमें पाकिस्तान जो है वो अब उसकी वो स्पेस नहीं रही, या कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं वो आड़े आ गई हैं, और पाकिस्तान की वो जो हम कहते थे कि हम इंडिया को रीजनल पुलिस में नहीं बनने देंगे, वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल होती जा रही हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये पहले कितना मुश्किल था कश्मीर इशू को जिंदा रखना, और आज आप क्या समझते हैं इस पे बताएं कि ये कितना जो मुश्किल जो है वो हो गया है? क्योंकि एक ऐसे लगता है कि बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं तो सारे बोलते हैं, बाकी फिर सारे मसरूफ हो जाते हैं। तो इसको भी सर जरा बताइएगा। जी देखिए, जो कश्मीर का मसला है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक कलीदी नुक्ता है, और इसके ऊपर पाकिस्तान की सारी अवाम भी मुतहिद रही है, पाकिस्तान के इदारे भी मुतहिद रहे हैं। हर वजीर आजम ने पाकिस्तान की क़यादत के हर शोबे में कश्मीर के ऊपर कमा हक्का हुआ आवाज भी उठाई है, हमने जंगें भी लड़ी हैं, हमने सारा कुछ किया। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कौम ने कश्मीर के मसले के ऊपर पूरी कोशिश नहीं की, बड़ी की है कोशिश। कोई इसमें शक किसी को नहीं होना चाहिए। 1948 से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक उस पे है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप हर कॉन्फ्रेंस में जाके तो आप देखिए, आप एक क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, वो यकनुकाती कॉन्फ्रेंस। अगर हर मुल्क अपने अपने कोई कॉन्फ्लिक्ट्स को बीच में लाने लग जाए तो अगले कहते हैं कि जनाब ये आप इस वक्त क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस। इसी तरह वजीर आजम का अगर यूएई का या कोई यकनुकाती दौरा है कि जी हमें रिसोर्सेज चाहिए, वसाइल चाहिए, तो उसमें आप ये चीज लेकर आ जाए, ऐसा नहीं होता। जो दौरे आपके मुकम्मल तौर पर होते हैं, यानी जिसे स्टेट विजिट्स कहते हैं, उसके अंदर जॉइंट स्टेटमेंट्स बनती हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि तमाम मामला जो उठाए जाते हैं उसमें यकीनी बात है कि कश्मीर पे भी। देखिए, मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि कश्मीर का जो मसला है, अ, ये हिंदुस्तान की हठ धर्मी की वजह से एक जिसे कहते हैं ना हल नहीं हो सका। और मैं इसलिए हिंदुस्तान की हठ धर्मी कह रहा हूं क्योंकि दो इसके कानूनी बुनियादें इसकी तो दो ही थी। एक पार्टीशन प्लान था, उसमें आपने देखा कि किस तरह महाराजा हरि सिंह के साथ मिलकर उन्होंने और उसकी वहां पे फौजें उतार दी 27 अक्टूबर 1947 को। और उसके बाद वो डिली डैली करते रहे कि हाँ हम कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। वो उसको नहीं उन्होंने जोर से किया। दूसरा था कि अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें खुद लेकर गए थे मामले को हिंदुस्तानी, और वहां की उसकी करारदादें आज भी मौजूद है, लेकिन उस पे भी वो अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि वक्त गुजर चुका है, और अक़वाम मुत्तहिदा की और कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली है उन्होंने वो फैसला कर दिया। अच्छा, वक्त के साथ ये भी हुआ कि हिंदुस्तान की मुआशी जो हालत बदलने लगी, और वो एक मुआशी कुव्वत के तौर पर भी उभरा। ये 1947 से 1991 तक ये वही हिंदुस्तान था जिसको कोई उस तरह नहीं उसकी आवाज में वजन था। लेकिन 1991 के बाद से जब से इनकी अपनी मईशत बेहतर होना शुरू हुई, और पिछले 25-30 साल में बहुत बढ़ गई। अभी तो वो आपको पता है कि छठी बड़ी आलमी मईशत है, कोई कहते हैं पांचवी होने जा रही है। तो उसके बाद से जो दुनिया के ममालिक हैं उन्होंने भी हिंदुस्तान को और जाविये से और नजरियों से देखना शुरू कर दिया। उससे पहले तो आपको पता है कश्मीर के ऊपर बोलते थे, बहुत सारे ममालिक बोलते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने ये कहा कि नहीं जी, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपस में ही मसला इसको हल करें, और हमें इसमें बीच में मत लाएं। और ये उसकी वजह ये कि उनके अपने तजारती मकासद हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता हो गए, माशी मकासद हो गए, इवन सियासी भी हो गए। फिर दुनिया मजीद तब्दील हुई। अब अमेरिका और चीन के दरमियान एक मुसाबका की कैफियत पैदा हो गई। जब वो मुसाबका हो गया तो उसमें अमेरिका ने ये इंतखाब किया हिंदुस्तान का कि ये मेरा यहाँ पे हलीफ होगा, मेरा साथी होगा, चीन को, उभरते हुए चीन को रोकने के लिए। और उसके बाद से हिंदुस्तान को एक नई, जिसे कहते हैं ना, एक नया वजन मिला, सियासी वजन मिला। उसने भी उनकी आवाज में बढ़ावा दिया, और कश्मीर के ऊपर दुनिया ने जरा बोलना कम किया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं लिया जा सकता कि पाकिस्तान की क़यादत या पाकिस्तान के अवाम के जोश और जज्बे में कोई कमी आई है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि दुनिया के जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो तब्दील होते चले गए,
اور ہندوستان کی وقتی طور پر وہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت کو دبانے میں کامیاب ہوا ہے، اور ابھی تک ہم اس کو روک نہیں سکے ہیں۔ لیکن جہاں پہ میں ہندوستان کے اور مقبوضہ کشمیر کی بات کروں گا، وہیں پہ چیمہ صاحب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی بات بھی ہونی چاہیے۔ گلگت بلتستان کے عوام بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا ایک مستقل یا عارضی صوبہ بنایا جائے، اور اس کے اوپر ہماری سپریم کورٹ نے 2019 میں ایک بڑی آپ کو قانونی بنیاد مہیا کر دی۔ اس سے پہلے ستاج عزیز کمیٹی تھی 2016 میں، پھر اس کے عمران خان صاحب نے نومبر 2019 میں اعلان کر دیا کہ ہم کریں گے۔ لیکن مجھے آنےسٹلی ابھی پھر 2021 میں ان کی اسمبلی نے اسمبلی نے ایک بار پھر یونینیمسلی کہا کہ آپ ہمیں ساتھ رکھیں، اور ویسے بھی ڈوگرا رول کوئی زیادہ نہیں تھا جی پی پہ، اور ان کے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن انہوں نے قائد اعظم کو جمع کرائے ہوئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کشمیر کا مسئلہ ہے وہاں پہ جی بی کے جو حق ارادیت ہے اس کو ہم ریکگنائز کریں، ان کو صوبہ بننے کا پورا موقع دیا جائے۔ اس سے کشمیر کے اوپر جو ہماری پالیسی ہے، ہماری جو موقف ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آپ اس کو سبجیکٹ ٹو فائنل سیٹلمنٹ کریں گے، کیونکہ ہر چیز فائنل سیٹلمنٹ کے اوپر ہی موقوف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بڑا ضروری ہے، اور بعد میں اے جے کے لوگ بھی اگر چاہیں تو وہی فارمولا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مجموعی تصویر اس لیے پیش کی تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ کشمیر کے ساتھ، مسئلہ کشمیر کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے وہ قائم ہے، اور وہ اسی طرح ہے، لیکن دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ہندوستان کو اس وقت وقتی طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا جلا ملی ہے، ایک ان کو کوئی روک نہیں رہا کہ وہ کشمیر میں جو اپنا اس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں اس سے ان کو روکا نہیں جا پا رہا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بحث صاحب، میں تھوڑا آگے چلوں گا، ذرا امریکہ بہادر پہ بات کر لیں۔ آپ کیونکہ امریکہ میں رہے بھی ہیں، سرو بھی کیا آپ نے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے نکلنے سے بعد پاکستان جو ہے اس کے اور امریکہ کے جو تعلقات میں وہ ایک سرد مہری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تعلق سیکیورٹی ریلیشن شپ تھا، یہ ہم کہتے ہیں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ تھا، کوئی اس طرح کا جو جس طرح انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہ نہیں ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، اور کیونکہ اب امریکہ مصروف ہو گیا انڈو پیسیفک میں، امریکہ مصروف ہو گیا یوکرائن کی جنگ میں، وہ اس میں پھنس گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان جو ہے اس کے امریکہ کے ساتھ کیا اب انٹرسٹ رہ گئے ہیں کہ وہ کیا اب پاکستان امریکہ کے کہنے کے بعد کوئی افغانستان میں حملہ کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری بھی ضروریات ہیں وہاں پہ، ٹی ٹی پی ہے، ہماری انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کچھ کرنا پڑا تو ہم کریں گے، امریکنز بھی کہتے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے۔ یہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ کیا پاکستان اور امریکہ کا سیکیورٹی کوآپریشن ہی زیادہ ڈومینیٹ رہے گا، یا کہ یہ اب ایک اور جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایڈ کے حوالے سے امریکنز ہماری کافی مدد کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان کے پاک امریکہ تعلقات کو سیکیورٹی ریلیشن شپ سے آگے نہیں جانے دے رہی؟ چمن صاحب، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات صرف سیکیورٹی ڈائمنشن میں ہیں یا یونی فوکل ہے، میں نہیں اس سے اتفاق کرتا۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ وسیع البنیاد ہیں۔ آپ اگر صرف غور کریں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اس کے شروع میں جو پاکستان کے پاس ساتھ ہندوستان نے پاکستان کو حصے نہیں دیے اپنی چیزوں کے، تو اس وقت ایک عدم تحفظ کا احساس ہوا، تو امریکہ نے اس وقت پاکستان کی مدد کی، انہوں نے اسلحہ بھی دیا اور اقتصادی لحاظ سے بھی آپ کی بڑی مدد کی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو زراعت کے شعبے میں ایک گرین ریولوشن لے کر آئے، بڑی بڑی نئی قسم کی بیج دریافت ہوئے، کئی نئی کراپس بہتر ہوئی وغیرہ، اور وہ سلسلہ زراعت کے شعبے میں آج بھی چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستانی طلبا وہاں پہ جانا شروع ہوئے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، تو وہ سلسلہ آج تک ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی طالب علم، شاید آپ بھی میں بھی وہاں مستفید ہو کے اپنے اپنے شعبوں میں اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور آج بھی امریکہ کی یونیورسٹیز پاکستان کے طالبہ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر
वो यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे डॉक्टर्स पब्लिक हेल्थ में हम बहुत अरसा उनके साथ काम कर रहे हैं। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जितना यूथ है जो इस वक्त इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एंगेज है, वो सब सिलिकॉन वैली के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए कोई ये अगर मुझे ये जब कहता है, अच्छा आज भी अमेरिका सबसे बड़ा तजारती शरीक है पाकिस्तान का, यानी सबसे ज्यादा हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर, और वहां से हमको 6-6.5 बिलियन डॉलर का हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम है उनके साथ है। देखिए ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की ताल, हाँ हुकूमतों के दरमियान जब बातचीत होती है तो कुछ पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस आते हैं। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान जो है उनकी जो हुकूमत है वो हमारे साथ हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसमें साथ दे। लेकिन ये भी मैं ये कहूंगा कि वो भी पाकिस्तान ने उस वक्त बाहमी मफाद में फैसले किए। मसला अयूब खान साहब जब उनके साथ आगे ये सिलसिले चल रहे थे तो आप ये भी तो देखे कि पाकिस्तान में उसकी वजह से एक सनती इनकलाब आ गया और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के नाम की इज्जत थी हर जगह। पाकिस्तान की एयरलाइन दुनिया की मुमताज तरीन एयरलाइन थी। पाकिस्तान की दर्सगाहों में सारी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। पाकिस्तान उस वक्त डैम बना रहा था और पता नहीं क्या क्या, हम तरक्की की शाहराह पे चल पड़े थे उस वक्त। और वर्ल्ड बैंक भी हमें मदद कर रहा, सारे सारे के साथ हमारे साथ सिलसिला था। फिर आया जियाउल हक का दौर। अच्छा उस वक्त बदकिस्मती से जियाउल हक साहब ने एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी और इस बात का देखा नहीं। देखिए अमेरिका तो वहां पे रूस को शिकस्त देने के लिए आया था ना, कोई इस्लामी जहाद बना पैदा करने के लिए तो नहीं आया था। ये तो हमने मदरसे बनाए अपनी सरजमीन पर और वो भिजवाए। तो ये क्या दुरुस्त काम हुआ? नहीं, 40-50 साल के तजर्बे ने साबित किया कि ये गलत हुआ। और उसके बाद फिर 9/11 में जनरल मुशर्रफ ने उनके साथ की, उस वक्त भी अगेन पाकिस्तान डार्लिंग बन गया सारी जगह पे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि चूंकि वो फैसले अवाम की मशावरत से नहीं हुए, उसके अंदर मसाइल आए। तो अब ये सारी चीजों का दोष अगर आप अमेरिका को दे दें, ये भी सही नहीं है। ये तो हमारी क्यादत के अपने फैसले, लेकिन अवामी सतह पर पीपल टू पीपल इस सतह पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमेशा कायम रहे हैं और शायद मेरे ख्याल में कायम रहेंगे। इनको तोड़ा नहीं जा सकता। सिक्योरिटी के मैदान में जो हुकूमत का काम है और वो दोनों हुकूमतों के ऊपर उतार चढ़ाव आया है। जब कई बार हम बहुत करीब आ गए, वो कहते हैं ना कि चाहे 50 की दहाई में हम 50 की दहाई में नजदीक थे, फिर 60 की दहाई में हम आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक करीब थे लेकिन दूर होना शुरू हुए। 70 की दहाई में मुकम्मल दूर हो गए, 80 की दहाई में फिर करीब आ गए, 90 की दहाई में फिर दूर हो गए, 2000 में फिर करीब आ गए, 2010 में फिर दूर हो गए और अब ये 2020 चल रहा है। इसकी दहाई में कुछ लोग कहते हैं कि उस साइकिल के हिसाब से अब दोबारा दोबारा मुल्क दोनों करीब आएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आप इसमें एक इजाफा कर दें कि ये जो दूरी और नजदीकी है ये हुकूमतों की बात हो रही है। अवाम की सतह पर हमेशा ही पाकिस्तानी अवाम और अमरीकी अवाम जुड़े रहे हैं, उनके इदारों से हम मुस्तफीद हुए हैं, उन्होंने भी। और कॉर्पोरेट अमेरिका ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक वाजे करना चाहिए। दूसरा आपने जिक्र किया अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका के अपने कुछ मकासद और उनके लिए उनको हमारी मदद दरकार थी। अमेरिका का ये ख्याल था कि तालिबान इसलिए शिकस्त नहीं खा पा रहे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनकी तालिबान की बहुत मदद कर रहे हैं। और इस वजह से हम उनको ये कहते थे कि तालिबान यकीनन यहाँ पे आते हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनको सेहत की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन उनका बल्क का जो काडर है वो वहाँ पे इस वक्त लड़ रहा है। तो आप सियासी हल करें। तो 17.5 साल के बाद उन्होंने कहा अच्छा हम सियासत की तरफ जाते हैं। उन्होंने बातचीत की और फरवरी 2020 में उनका मामला तय आ गया। उसके बाद अमेरिका ने कहा कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी और हम चले जाएंगे। लेकिन दूसरी गलती जो अमेरिका ने वहां पे ये जो गलती की वो ये की कि उन्होंने, हमने कहा था कि आप एकदम से विड्रॉल नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल करेंगे, लेकिन वो भी उन्होंने तेजी से कर दिया। तो तालिबान को कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं मिली, वो अब हुकूमत में आ गए। लेकिन अगर आप तालिबान के जाविये से देखें तो वो कहेंगे देखिए हमने तो हमारी तो रवायत है कि हम रूसियों को भी शिकस्त दी, फिर हमने अमरीकियों को शिकस्त दी, हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। वो उस जाविये से उसको देखते हैं।
तो उन्होंने टीटीपी, जो मैं समझता हूँ कि टीटीपी और टीटीए एक ही सिक्के के दो रुख हैं, आइडियोलॉजिकली वो दोनों वो है। और ये बात भी हमें सोचना चाहिए थी कि अगर तालिबान की जो शरीयत का जो जो भी निज़ाम है, अगर वो पाकिस्तान के लिए हम नहीं चाहते, तो हम अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए क्यों चाहें? और फिर ये भी है कि क्या तालिबान जो है वो हमें अंदाज़ा नहीं था कि जब उधर हुकूमत बनेगी तालिबान की, तो पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले तालिबान हैं, वो भी इस किस्म की एक इलाका लेकर अपनी बनाना चाहेंगे, एक इमारत बनाना चाहेंगे। तो ये एक मामला जो है ये बढ़ गया है। और फिर तालिबान ने 3 वादे किए, उन तीनों में से कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा। आपको पता है कि ख़वातीन की तालीम के हवाले से, इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से जो एक यानी इंक्लूसिव हुकूमत बनाने के हवाले से, और तीसरा जो है कि भी हम टेररिज्म को नहीं आने देंगे। तो वो आपने देखा कि उसकी वजह से पूरी दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। उनको ये शक पड़ गया है, खदशा बढ़ गया है कि अफगानिस्तान में दोबारा टेररिस्ट एंटिटी सारी की सारी आ जाएंगी। शायद अलकायदा भी आ जाए, शायद अलकायदा के तो अयमन अल-ज़वाहिरी वहां पे मिले, अभी हमें हमने खबरों में पढ़ा कि वो अमेरिका ने उनके ऊपर हमला करके उनको खत्म किया। तो इसी तरीके से आईएसकेपी तो बहुत ज्यादा एक्टिव है। टीटीपी का भी आपने देखा है कि किस तरह हमारे हमले कर रहे हैं, वो वहां से आते हैं। चीन को खौफ है ईटीआईएम का, उज्बेकिस्तान को खौफ है आईएमयू का। तो ये जो एक मामला है, ये अब सिर्फ इलाकाई नहीं रहा, दोबारा आलमी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान और बाकी सारे ममालिक अमरीका को कहते हैं और यूरोप को कहते हैं कि आप इस तरीके से हाथ झाड़ के नहीं जा सकते, आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है, इंसानी अलमिया पैदा हो गया है, यहाँ पे इक्तसादी मसाइल हैं, आपने उनके पैसे रोके हुए। इन तमाम चीजों को बैठकर डिस्कस करके तालिबान को आप चाहे इंसेंटिवाइज करें, चाहे उन पे प्रेशर डालें, लेकिन उनको लाना है इस तरफ कि एक नॉर्मल हुकूमत बनाएगी जिसके अंदर आप टेररिस्ट एंटिटीज को नहीं आने देंगे। तो अमेरिका के साथ तावन इस इलाके का बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इलाके की अपनी है। इसीलिए पाकिस्तान, चीन, रूस, सेंट्रल एशिया के मुल्क और ईरान की आपस में मशावरत बेतहाशा जरूरी है, क्योंकि वो ये सबसे ज्यादा खतरा अफगानिस्तान से उनको आएगा। लेकिन अमेरिका के साथ तावन आप देखेंगे कि यूरोप के साथ तावन जारी रहेगा इस पे, क्योंकि दहशतगर्दी का मामला सिर्फ और सिर्फ हमारा या अफगानिस्तान के हमसायों का नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का ये मसला बनने जा रहा है। जी। सर मैं इस पे एक दो सप्लीमेंट्री करना चाहता हूँ, छोटे छोटे सवाल। एक तो जी। सर ये है कि जब मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था, तो उससे मुराद ये है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप रहे जी। हैं फॉरेन ऑफिस में, हु टेक्स द लीड? जीएचक्यू लीड लेता है कि फॉरेन ऑफिस लीड लेता है? जी। जी। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जनरल बाजवा ने एक फाइनल विजिट किया और अमेरिका का, और अपने रिटायरमेंट से पहले, और इससे पहले ये कहा जाता है कि जब अमेरिकन आते हैं तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो जीएचक्यू चले जाते हैं, बजाय इसके कि वो जो है ना फॉरेन ऑफिस आए या पीएम हाउस आए। तो जी। ये जो चीज है, हाउ डू यू सी दिस? एक तो लीड कौन लेता है? और मैं जो ठीक है। सिक्योरिटी की बात कर रहा था, तो इट मींस के जैसे अभी भी खैर सेंटकॉम के चीफ आए थे, वो तो चलो एक जनरल टू जीएचक्यू जी। एंड पेंटागन था, लेकिन हाँ। ओवरऑल जो है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री लीड कर रही है, नजर तो ये आता। तो मैं इस लेंस से सिक्योरिटी कह रहा था। जी। और जी। दूसरा हमें ये बताइएगा कि फॉरेन ऑफिस लीड लेता है या जी। जीएचक्यू लेता है, तो आप क्या इनपुट देते हैं जीएचक्यू को व्हेन इट कम्स टू इनपुट? जी। क्योंकि जी। लगता जरूर। है जी। ज़रूर। देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि एक गलतफ़हमी है पाकिस्तान के हलकों में, पढ़े-लिखे हलकों में भी, कि सारी ख़ारजा पॉलिसी फ़ॉरेन ऑफ़िस बनाता है या उसे बनानी चाहिए। ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में, आपने मेरा टफ्ट्स का ज़िक्र किया, बड़ा शुरू में सर्विस के मैंने कोर्स लिया था मेकिंग ऑफ यूएस फ़ॉरेन पॉलिसी। तो बड़ा अंदाज़ा हो गया कि स्टेट डिपार्टमेंट उनकी ख़ारजा पॉलिसी नहीं बनाता। वो अपनी राय देता है और उस पे पेंटागन भी राय देता है, सीआईए भी देता है, ट्रेजरी भी देता है, कॉमर्स भी देता है। वो सब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाके मर्ज होती हैं, मल होती हैं, एनालिसिस होता है और वो सदर अमेरिका को दिए जाती हैं, जिसमें वो फैसला करता है। हाँ, जब फैसला करके वापस आते हैं तो स्टेट डिपार्टमेंट उसका फोकल पॉइंट बन जाता है नफाज के लिए, तनफीज के लिए। वो सारे स्टेक होल्डर से बातचीत करता है, पूछता है कि जनाब इस पे अमल दरामद हुआ है, ये नहीं हुआ है। ये इनपुट सबकी आती है। कहीं कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें
फौजी इनपुट ज्यादा हो जाती है, कुछ में इंटेलिजेंस इनपुट्स हो जाती है, कुछ में ट्रेजरी की बहुत ज्यादा इनपुट्स हो जाती है, सैंक्शंस के मामला है मिसाल के तौर पर, वगैरह वगैरह। यही आलम हिंदुस्तान में है, यही आलम दुनिया के हर मुल्क में, और यही पाकिस्तान। तो पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि खारजा पॉलिसी के हवाले से दफ्तर खारजा का सिर्फ इतना काम है कि किसी भी मसले पर वो तमाम स्टेक होल्डर से इनपुट्स ले, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जैसा इदारा मौजूद नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन तो है, पर वो ये काम कर नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी नहीं है। आपको पता है, आते हैं चले जाते हैं, हमने कोई उसको मुस्तकिल हैसियत नहीं दी, जो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि आपके पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होना चाहिए, कमेटी नहीं। कमेटी इज ए सब कमेटी ऑफ द कैबिनेट। मैं ये कहता हूँ आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएं, जिसके अंदर सिविल और मिलिट्री क्यादत बैठे और ये सारे मामला वहां पे जाएं और वो करें। अब ये रह गया कि क्या हमारा यहाँ जीएचक्यू और आईएसआई ज्यादा किरदार अदा करते हैं अपने हिस्से से। देखिए, जो सिक्योरिटी के मामला आते हैं उसमें करते हैं, और शायद उससे बाकी मामला में भी आते हों, क्योंकि इम्प्लीकेशंस तो होती हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मसले भी तो बहुत ज्यादा है ना साहब, एक नॉर्मल सूरत हाल तो नहीं है। एक इतना बड़ा मशरकी हमसाया जिसके साथ हमारे ताल्लुकात 75 साल से कशीदा चले आ रहे हैं। एक तरफ हमारा मगरबी हमसाया है अफगानिस्तान, जिसके अंदर भी एक जंगो जदल की कैफियत है पिछले 40-50 साल से, और उनके साथ वैसे भी हमारे बॉर्डर भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो भी मसाइल चले। ऐसे में सिक्योरिटी इनपुट्स का बहरहाल डोमिनेंट एक थीम रहेगी। इस वजह से ये कहना कि जीएचक्यू या आईएसआई को वो अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए और सिर्फ फॉरेन ऑफिस करे, ये बिल्कुल करीन अज कयास नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। उनको अपना किरदार अदा करना है, लेकिन क्या उनको उससे आगे बढ़कर रोजमर्रा के सफारती ताल्लुकात और वो करने चाहिए? मेरा अपना जाती ख्याल है कि नहीं करने चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक मुल्क का कोई सफीर है वो जाके जीएचक्यू में, मेरा अपना जाती ख्याल, मेरा ये ख्याल है कि वो काम जो है वो उधर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ दफ्तर खारजा में होना चाहिए। तो आपका फेस दफ्तर खारजा रहना चाहिए, लेकिन आपके पीछे सारी इनपुट्स जो हैं वो आनी चाहिए जीएचक्यू से। इससे आपका ख्याल है हिंदुस्तान की फौज उनकी खारजा पॉलिसी पे असरअंदाज नहीं होती? गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल होती है, बहुत ज्यादा होती है, उनकी इंटेलिजेंस भी होती है, लेकिन उन्होंने उसको सामने नहीं रखा, फेस पे नहीं आया। तो यही हमारे यहाँ भी होना चाहिए कि ये जो रवैया था कि एयरपोर्ट से कोई आए विजिटर, फॉरेन विजिटर, वो सीधा उधर जाए, ये इसकी हमें इस रविश को तर्क करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल काम जी जनाब। बिल्कुल सर, इसमें एक ही अफगानिस्तान पे एक आखिरी सवाल, और वो इंडिया के रेफरेंस से है। जी आपने बात की कि पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशियन ममालिक को कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। सर, जी जी पाकिस्तान तो ये मैकेनिज्म नहीं बना सका, वो तो इंडिया ने बना लिया, जो एनएसएस लेवल का था, जिसमें अगर आपको याद हो कि मोहित यूसुफ ने कहा, जब अजीत डोवल ने कहा कि मैं एनएसएस को बुला रहा हूँ, तो मोहित यूसुफ ने कहा कि जो स्पॉइलर है वो हम क्यों वहां पे जाके बैठे। तो अभी जी मैं रिसेंटली देख रहा था, पिछले 1-2 माह पहले भी जो सब हम्म, सेंट्रल एशियन ममालिक के आए हुए थे, ईरानियंस आए हुए थे, रशियंस आए हुए थे। सो इंडिया जो है वो एक मैकेनिज्म या लीड ले रहा है अफगानिस्तान में। सो वेयर डू यू सी द पाकिस्तान मल्टीलैटरल अप्रोच, या कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, या चाइना, रशिया या सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ जो है वो कोई बैठ के मसला हल करे? बल्कि हमारे तो तालिबान के साथ अपने प्रॉब्लम शुरू हो गए, कभी बाढ़ का, कभी कुछ और। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो इंडिया का कोई एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रखना और पाकिस्तान का अपने बायलैटरल मामलात सॉल्व करने के लिए मौलवियों को यहाँ से भेजना, सो हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और उनके अफगानिस्तान के साथ बड़े पुराने सकाफती और सियासी ताल्लुकात रहे हैं। तालिबान के आने के बाद भी आपने नोट किया कि इवन तालिबान की हुकूमत ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहेंगे, और हिंदुस्तान की अपनी भी मकसद है कि भाई हम ये रास्ते रखें, ताकि कभी जब पाकिस्तान राजी हो तो ये ट्रांजिट ट्रेड के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते हम सेंट्रल एशिया और पूरे यूरेशिया के साथ अपने रवाबत कायम कर सकें। इसलिए हिंदुस्तान मुख्तलिफ हवालों से दिलचस्पी अपनी अपनी जाहिर करता रहता है, और अमेरिका ने तो अपनी जो स्ट्रेटजी 2017 की, अगस्त 2017 की बनाई थी, उसमें बाकायदा हिंदुस्तान को एक किरदार दे दिया था अफगानिस्तान में। लेकिन इस बात से अब कोई उसको नहीं जुटला सकता कि पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार है अफगानिस्तान के हवाले से, वो हिंदुस्तान नहीं ले सकता वो वाला किरदार। वो जो हमारा इसलिए है कि हम बाकायदा उनके हमसाए भी हैं,
और हमारे यहाँ एथनिक लिंक्स हैं, फेथ के लिंक्स हैं, ये सब मौजूद है। तो पाकिस्तान का मैकेनिज्म तो पाकिस्तान ने बतेरे बनाए हुए हैं, बल्कि एक जो इस वक्त मशावरत चल रही है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अफगानिस्तान के ऊपर जो बने हुए हैं सारे मुल्कों के, हमारी तरफ से एम्बेसडर सादिक हैं, ये बड़ा फ़ाल मैकेनिज्म है। अजीत डोवाल साहब वाला वो जो सिलसिला वो चला नहीं, क्योंकि उसमें अगर पाकिस्तान नहीं है तो वो नहीं चल सकता उस तरीके से। लेकिन इसमें तमाम हमसाए जो हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, और चीन और रूस उसमें शामिल हैं, और अमेरिका भी उसमें दिलचस्पी लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सफारती लिहाज से कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के पास कोई मैकेनिज्म की अफगानिस्तान के हवाले से। असल चीज ये है कि हम तालिबान को एक या अफगानिस्तान को एक आजाद मुल्क के हवाले से देखें, ऐसे देखें कि बस एक मुल्क। हम ये मत सोचे कि भाई अफगानिस्तान में एक प्रो पाकिस्तान हुकूमत होगी तो हमारे मसाइल हल होंगे, वो हमने देख लिया कैसे नहीं होता। अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क है, उनके साथ तालिबान की हुकूमत के साथ आप उसी तरह डील करें जिस तरह आप अशरफ गनी या हामिद कारजाई या उससे पहले किसी के साथ डील करते थे। यही एक तरीका है, और वो एक बॉर्डर है, हमारी तरफ से वो बॉर्डर है, उसके ऊपर बातचीत करें, स्ट्रेटेजिक डायलॉग उनके साथ करें। जब तक हुकूमत रस्मी तौर पर उनको तस्लीम ना भी कर ले तो भी हम उनके साथ ये रवाबत रखें। और आपके पास, मैं आपको बताऊं, बहुत जराए हैं। आप ट्रांजिट, अफगानिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड सारी की सारी हमसे जाती है, उनकी बायलैटरल ट्रेड। तो इस वजह से आप अफगानिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर ट्रीट करके और उसके साथ उसी तरह बाहमी मफाद की बुनियाद पर सारे ताल्लुकात उस्तवार करें। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ पुरअमन तौर पर रहना चाहिए, ये एक हमारा हमसाया है, और इसके साथ जो है बिगाड़ जो है वो मुनासिब नहीं है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात जो है वो खराब नहीं करने चाहिए, उनको सुलझाने की कोशिश जारी रहनी चाहिए हर दम। सर, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ और जी, ये जो बात करना चाहता हूँ कि इस वक़्त कहा जा रहा है कि दुनिया की जो तारीख़ है, जो जी, ग्लोबल हिस्ट्री या जो अगले 50 साल वो कम से कम इंडो-पैसिफ़िक में लिखी जानी है। जी, चाइना और पाकिस्तान ये नोमेनक्लेचर देता है कि उसको एशिया पैसिफ़िक कहा जाए, दुनिया सारी कह रही है इंडो-पैसिफ़िक कहा जाए। या, आप फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अभी बिलावल भुट्टो ने इंडोनेशिया एंड सिंगापुर का दौरा किया, वो भी एक अफ़गानिस्तान के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी एंड देन ही विज़िटेड। आप क्या समझते हैं हमारा कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन क्यों नहीं है इस दुनिया में, एशिया पैसिफ़िक में या इंडो पैसिफ़िक में? हम क्या हमने वो जिसे कहते हैं ना एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी तो बना ली कि चलो ठीक है, अफ्रीका के साथ एंगेज करें, लेकिन ये जो ग्लोबल इंजन है इकोनॉमी का जिसको पिछली दुनिया पिछले 10-12 साल से पर्टिकुलरली अमेरिकन्स जो है वो बड़ा काम कर रहे थे स्टार्टिंग फ्रॉम द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले जापानीज़ और वो सारा जो भी ये चला इसको क्वाड शॉर्ट के ऊपर बात होनी शुरू हुई। हम क्यों इस दुनिया में ध्यान नहीं दे सके? हालाँकि वहाँ पे कुछ मुसलमान मुल्क भी हैं क्योंकि हम ज़्यादा ओआईसी फ्रेमवर्क के ज़रिए काम करते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और इस तरह के। आप क्या समझते हैं हम क्यों इस दुनिया से ज़्यादा एंगेज नहीं हैं? और जितना प्रोएक्टिव होना चाहिए वो नहीं है और हमारी सारी लीडरशिप या वो यूरोप जाती है या वो मिडल ईस्ट जाती है। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस सर? जी, बड़ा सादा इसका जवाब है। देखिए, जो आपने लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी भी बनाई, आपने आसियान में डायलॉग पार्टनरशिप लिए हुए 25-30 साल हो गए हैं, फुल डायलॉग पार्टनरशिप भी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि आप दुनिया को सियासी नुक्ते नजर से देखते रहे। आपकी सारी तरजीहात, आपके सारे मसाइल, आपके सारे, आपने कभी इक्तिसादी जाविये से देखा ही नहीं दुनिया। आपने तो अपने खित्ते से जो आपको माशी फवायद हो सकते हैं, आपने वो भी नहीं लिए मेरे भाई। सारी दुनिया के जो खित्ते हैं वो पहले अपने ही खित्ते के अंदर, अपने ही रीजन के अंदर इक्तिसादी और माशी फवायद हासिल करते हैं, उससे वो एक ताकत पकड़ते हैं और उसके बाद उनका सियासी जो क्लाउट है वो बढ़ता है। अब आसियान के बहुत सारे मुल्क बरमला कह देते हैं आपको कि जनाब आपका माशी वजन इतना नहीं है कि आप आसियान के साथ वो तजारत है, वो सारा आप बताएं ना कितनी तजारत है, आप करके दिखाए, सिवाय इसके कि आप पाम ऑयल खरीद लेते हैं मलेशिया से और इंडोनेशिया से, और क्या तजारत है आप। तो जब तक आप आगे ये तमाम चीजों का, इसीलिए जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पिछले साल जनवरी में आई तो उसमें जब ये कहा गया जियो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, तो मेरे जैसे जो लोग हैं जो सारी जिंदगी ये ख्वाहिश रखते थे बड़े खुश हुए। वो इसलिए खुश हुए क्योंकि कम से कम आप कहने तो शुरू कर रहे हैं।
जब तक आपकी इक़्तिसाद, देखिए हिंदुस्तान की मैंने आपको मिसाल दी कि वो आज $600 बिलियन के रिजर्व पे बैठा है, तो उसका फिर वजन बढ़ गया ना, सियासी वजन भी बढ़ गया। और चीन भी, तो आपको ये याद रखिएगा कि चीन भी जब एक माशी लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी मईशत बना, तब अमेरिका ने सोचा कि ये तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। हमने ये नुस्खा कीमिया कभी इसको संजीदगी से लिया ही नहीं, कि जब तक आपने देखा है कि आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, हम पुराना सुनते थे कि जिन्हां दे घर दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। देखिए ये हर जगह होगा, ये एक अबदी और आलमी हकीकत है। पाकिस्तान ने अपनी इक़्तिसाद पर, पाकिस्तान ने अपने इक़्तिसादी ताल्लुकात को वो तरजीह नहीं दी अपने खारजा पॉलिसी, अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, और उसका नतीजा ये, अब आप ये देखें कि हम नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, चीन के जरिए आएगा, ठीक है जी, और वो, लेकिन ईस्ट वेस्ट कोई नहीं। तो जो ईस्ट वेस्ट नहीं होगा वो बलूचिस्तान में स्टेबल नहीं होने देंगे। तो ये आपकी सारी तरजीहात में एक बहुत बुनियादी, अच्छा आप गेटवे कहते हैं इसको, गवादर को, हम मौजूद थे वहां, गए थे 2 महीने पहले, मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये होने वाली है सारी, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था ना पानी है, ना बिजली है, ना लोकल कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हमें इसका दोष ईस्ट एशिया को बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं। हमें अपने इक्तिसादी सूरत हाल के ऊपर बड़ी ही और उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं कि अब हम सारे ताल्लुकात हमारे खारजा पॉलिसी के वो इस नुक्ते पे आके जुड़ गए कि जनाब कहां से हम कितने पैसे ले सकते। किसी भी गयूर कौम के लिए, किसी भी बाशऊर कौम के लिए ये नुक्ताए फिक्र है कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी वजह है कि आपने अपने इक्तिसादी हालात पे खुद तवज्जो नहीं दी, और उसको ताल्लुक है, उसका जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। जिस मुल्क में जिस तरह भी सियासी इस्तेहकाम आया, अब पिछले 8 साल से मोदी सरकार बैठी हुई है, बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत बैठी हुई है, और आपने देखा कि ली कुआन यू 25 साल तक हुकूमत करते रहे, महातीर मोहम्मद 25 साल 30 साल रहे। रिजल्ट ये है कि वहां पे एक स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में तसलसल लाए, तसलसल से वो आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के लोग किसी लिहाज से कम नहीं। आप इस वक्त वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका की मुख्तलिफ जगहों पर गुजरा है, और मैं ये बात जानता हूं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो किस कदर टैलेंटेड हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में जहां पे मैं 6.5 साल रहा, और मैंने सारी दुनिया के लोगों को वहां देखा, और मैं ये देखता था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो ज़हानत अता की है, और वो यानी मेहनत करने की सलाहियत दी है। सिर्फ हमारे यहाँ पॉलिसीज नहीं सही है, हमारी क़यादत जो है वो इस पे तवज्जो नहीं देती रही है, और हम हर वक्त, ये भी आपने देखा, आपने इंटरव्यू सिक्योरिटी से शुरू किया, क्योंकि हमारा माइंड सेट ही वो बन गया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि माशी सिक्योरिटी जो है, असल सिक्योरिटी, उसकी रूह है, यही ईस्ट एशिया से है। करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस्तेताअत नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस चीज नहीं है। हम वो चीज बना ही नहीं सकते उस क्वांटिटी में कि दुनिया कहे कि हाँ जी आपका जो सामान है वो हम लेना चाहते हैं। खाली चावल बेचकर तो नहीं होता ना जी सिलसिला। जो गंदम आप बेचते थे, जब मैं छोटा था, पढ़ता था, तो मैं देखता था कि गंदम को हम कहते थे, गंदम में पाकिस्तान जो है वो फरावां है और भेजता है, वो भी हम नहीं कर। कॉटन, हमारी कैश क्रॉप कहते थे उसको, कैश क्रॉप। आज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या शिफ्ट हो रही दूसरे मुल्कों में, या कॉटन बाहर से मंगवा रही है। देखिए ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, तो ये है, और इसलिए अपने गिरबान में झांकें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल खारजा पॉलिसी जो है वो दाखिला पॉलिसी का ही मजर है। दाखिला पॉलिसी, अगर आपने दाखिला मुआशी पॉलिसी, दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी अगर इसी तरीके से रखी, तो आप ये देखेंगे कि आपकी मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सके। और अब हम कर्जों में जकड़ी कौम है, तो इस वजह से आपको इस बात का, हमारी क़यादत को एहसास हो जाना चाहिए कि हमारी ये जो पॉलिसीज हैं, इसीलिए मैंने एक डॉन में आर्टिकल लिखा था, डीप रीथिंक। ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये टर्म इस्तेमाल की थी हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज में आके, तो फिर मैंने कहा अच्छा वो 6 महीने पहले की थी, तो देखिए 6 महीने में क्या डीप रीथिंक का है। तो वो मकसद मेरा कहने का ये है चीमा साहब कि हम कोई किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहे, बहैसियत कौम ये हमारा सबका एक मजमुई कमी है जिसको हमें पूरा करना है और आगे लेकर चलना है। जनाब आखिरी
आखिरी सवाल करूँगा, इंटरव्यू थोड़ा जा लंबा हो गया, क्योंकि जी मुझे भी मज़ा आ रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हम चाह रहे हैं कि आपकी जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उसे एक्सट्रैक्ट करें और लोग सुनें इसे। और सर जी वो है मिडल ईस्ट पे के हवाले जी से। हम्म, जो किंग ऑफ द किंग्स थे, उनके पास भी पैसे माँगने जाते थे और आज भी जा रहे हैं। आप हम्म, कैसे समझते हैं कि जिस तरह मिडल ईस्टर्न ममालिक ने, यूएई ने, जीसीसी ने बहुत सारे पाकिस्तान फॉर एग्जांपल कश्मीर के मसले को इतना सीरियस लेना छोड़ दिया है, ओआईसी इतनी गैर फाल हो गई, इसमें पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है कि हमें किस तरह जो मिडिल, और जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे मोहम्मद बिन सलमान आ गए सऊदी अरब में, विजन 2030 आ गया, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जा जो लीडरशिप है वो हमें ज्यादा मजीद रिलीजियोसिटी और इन चीजों की तरफ लेके जा रही है। वो कह रहे हैं यार बिजनेस इकोनॉमी इन चीजों जी से नजर रखें, कारोबार करें, पहले पहले रोटी कमा लें फिर चीजें करें। आप क्या समझते हैं ये जो बदलता हुआ मिडल ईस्ट है, जैसे यूएई है, बाकी मुल्क हैं, हम्म, व्हाट लेसन्स इट हैज फॉर पाकिस्तान, और हमारी लीडरशिप जाती है हर मुल्क, वो कुछ ना कुछ तो कहते हैं उनको, और आप भी बहुत सारी चीजें आपने सुनी है, आपने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ट्रैवल किया हुआ है, आपने पता है जो वो कहते हैं, हम वो क्या लेसन है हमारे लिए फ्रॉम द चेंजिंग मिडल ईस्ट सर? देखें चीमा साहब, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया और बड़ी उसकी खूबसूरती ये थी कि उसी के अंदर जवाब भी मुज़मिर था। तो ये बदलता हुआ मिडल ईस्ट है। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया है कि सिर्फ़ तेल के ऊपर हमारा इन्हिसार हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो तमाम ने, जिस तरह सऊदी अरब ने 2030 विज़न बनाई है, सब ने बनाई है। हमने इसके ऊपर एक पेपर तैयार किया और उसके नतीजे में वो ये भी देख रहे हैं कि हम सिर्फ़ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को ही ना रखें। आपने देखा कि हाल ही में चीन के सदर वहाँ पे गए सऊदी अरब में। सदर बाइडेन भी आए थे, लेकिन वो तेल के हवाले से आए थे। ये पूरा एक बहुत जामे किस्म का था। तो एक वो अपनी डाइवर्सिफ़ाई करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सरमायाकारी इन्वेस्ट जो डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, वो सारा कुछ अमेरिका में नहीं रखना चाह रहे, वो सब जगह डालना चाह रहे हैं और एशिया की तरफ रुख किया उन्होंने। इसीलिए पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ 10 बिलियन तक जाना चाहते हैं। और अमेरिका हिंदुस्तान में तो वो 60-70 से ऊपर चले गए। और इसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि दुनिया इस वक्त मल्टीपोलर बन गई है, यूनिपोलर नहीं रही, हमें सारी तरफ अपना फैल वो करना है। और पाकिस्तान में इसमें लिए बड़े ही नादिर मौके थे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है, माजी उनका इकट्ठा था, उनकी जो बड़ी क़यादत है, जिस तरह शेख जायद मरहूम थे, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। तो पाकिस्तान के पास ये जो हमारे एडवांटेजेस हैं, हमें इसका फायदा उठा के यहाँ पे, लेकिन घर नहीं से घर में मसाइल है, घर में आग लगी हुई है, सियासी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी। तो वो बेचारे क्या करें? वो फिर क्या करेंगे? वो ईस्ट एशिया चले जाएँगे, जो ज़्यादा स्टेबल है, वो हिंदुस्तान चले जाएँगे। एशिया में तो जाना है उन्होंने, वो मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएँगे। तो ये एक, और आपने ये देखें कि वो इतने प्रैग्मैटिक हो गए हैं कि हिंदुस्तान के साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने ताल्लुकात नॉर्मल किए। इज़राइल के साथ अपने ताल्लुकात वो नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अपनी जो उनकी इक्तिसादी तरक्की है, वो उसी सूरत में कायम रह सकती है कि वो दुनिया के अपनी ऑप्शंस को डाइवर्सिफ़ाई करें। हमने अपने ये काम नहीं किए। हम कभी अमेरिका के साथ कभी रूठी हुई हालत में होते हैं, कभी बड़ी खुशी की हालत में होते हैं। अब आके हमने कहा कि हाँ, तमाम मेजर पावर्स के साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। ये अब आके कहा, बड़ी लेट कहा। हम तो हमारे और मैं समझता हूँ कि ये जितनी उभरती कुव्वतें हैं मिडल ईस्ट समेत, इन सब के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जा सकते हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान की अपनी इक्तिसाद, अपनी सियासत जो है, वो इस्तेहकाम की तरफ चले। मैं आपको बताऊँ कि आपकी खारजा पॉलिसी जो है, वो कई गुना ज़्यादा मुतास्सर और तासीर कुन हो जाएगी, अगर आपकी अपनी सियासत और अपनी इस मईशत में थोड़ा इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान को रोक नहीं सकता कोई, पाकिस्तान के अवाम के अंदर इतना मैंने देखा है पोटेंशियल और सलाहियत, ये मैं ऐसे ही मुहावरतन नहीं बोल रहा। ये मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद ये कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि हमारे लोग जहाँ पे भी गए हैं, उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ, जो कि आपका आखिरी सवाल था कि हमारी क़यादत को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक दे कि वो पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम की फ़िक्र करें और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल की फ़िक्र करें। उसी से जुड़ी हुई है हमारी ख़ारजा पॉलिसी, उसी से जुड़ा हुआ है हमारी सिक्योरिटी, उसी से जुड़ी हुई है हर चीज़ पाकिस्तान की।
तो अल्लाह करे कि हम उस नहज पर, उस रास्ते पे चल निकले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब। सर इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और आपके जो तजुर्बात हैं और आपका जो पर्सपेक्टिव है ये वही है, क्योंकि आपने इतना सर्व किया हुआ है, एंड आपकी वो जो डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़ाहिर बात है हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चीमा। खुश रहिए, सलामत रहिए।